So coming to the statistics, we are going to discuss first of all CPU utilization from time t is equal to CPU utilization from time t is equal to from 0 to 54. हम 0 to 54 क्यों ले रहे हैं? Why are we taking time CPU utilization from 0 to 54? Reason is simple, that we don't know how far we are going to go in the timeline. अब ये तो चल रही है, timeline is going on. So the window of concern for us is from time t is equal to 0 to time t is equal to 54. So out of this 54 time units, the CPU is not busy for the first 6 time units, but it is always busy for the next 48 time units. So CPU utilization will be simple. It will be very simple. It is going to be that is equal to 48 divided by 54. That is equal to if we can use the calculator. It is going to be 88%, around 89%, 88.88%, right? So this is the CPU utilization. Now let's come to the other parameters. The other parameter is throughput. One other parameter is throughput. So throughput between time t is equal to 54, 0 and time t is equal to 54 is in these 54 time minutes, 5 processes went through the system. So it is going to be 5 divided by 54. That is equal to around 8 or 9%. Maybe let's calculate it somehow. Let's see, 5 divided by 54. This is going to be 0.093%. 0.093%. Okay. This is the 0.093 is the not percent, 0.093, because it's the number of processes that went through the system in a unit time. This is 0.093. Now coming to the other important things, what is the turnaround time? Turnaround time is very simple. Turnaround time is the time between when a system enters into the system, when the process enters into a system until it leaves the system, right? So we have to calculate average first. So for average, we have to calculate individual turnaround times. So for turnaround time of process P1 is going to be simple. Process P1 का turnaround time होगा. Process P1 came into the system at time t is equal to 10, and when it went out of the system at time t is equal to 24. So its turnaround time is 14 time units. Okay. Similarly, for process P2, turnaround time will be different. Its arrival time was t is equal to 6, and it went out of the system at time t is equal to 21. So it took 15 time units to get through the system, right? So it is going to be 15 overall. For process P3, came into the system at time t is equal to 25, and it went out of the system at time t is equal to 54. So from 25 to 54, it is 35, 45, 54, 29 time units. So there are 29 time units. For 29 time units, process P3 has been in the system, right? So coming to process P4, process P4 came into the system
at time t is equal to 18, and it went out of the system at time t is equal to 38. So the turnaround time of process P4 is 20 time minutes. Okay. Coming to process P5, turnaround time of process P5 is going to be difference of its arrival time, that is t is equal to 35, and its departure time, that is t is equal to 45. So its turnaround time is going to be simple 10. So now we have all 10 turnaround times, and we have number of processes equal to 5. So average turnaround time is going to be equal to average of all these, that is equal to 14 plus 15 plus 29 plus 20 plus 10. This is going to be equal to add all these and divided by the total number of processes, that is equal to 5, divided by total number of processes equal to 5. So this is going to be something like 14 plus 15, 29, 29 plus 29, 58, 58 plus 20, 78, 78 plus 10, 88 divided by 5, 88 divided by 5. This comes out to be value that is 17.6 something. 17.6. If I am not wrong, let me use the calculator, and it is going to be 88 divided by 5, that is equal to 17.6, right? Coming to the waiting time. Now, coming to the waiting time, again we have to calculate average of all the waiting times. So starting from P1, P1's waiting time is going to be the difference of its turnaround time and its burst duration. टर्नअराउंड टाइम क्या है कि वो टोटल टाइम जो उसके सिस्टम में गुजारा, और बर्स्ट ड्यूरेशन क्या है? बर्स्ट ड्यूरेशन इज द ड्यूरेशन इज द टाइम इट स्पेंट इन द सीपीयू. तो जाहिर है अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो वही टाइम बच जाता है जो उसने रेडी क्यू में गुजारा है वेटिंग फॉर द प्रोसेसर. इसका टर्नअराउंड टाइम 14 है P1 का, और इसका बर्स्ट ड्यूरेशन 3 था. इसका वेटिंग टाइम जो है वो 11 है. इसने 11 टाइम मिनट्स जो है वो वेट करने में गुजारा रेडी क्यू में. इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि इसको कितनी देर क्यू में वेट करना पड़ा. ये आया था एट टाइम t इज इक्वल टू 11, एट टाइम t इज इक्वल टू 10, और इसको सिस्टम पे टाइम मिला एट टाइम t इज इक्वल टू 21. इसका वेटिंग टाइम जो है वो जाहिर है 11 टाइम मिनट्स आ गया. इसी तरीके से हम प्रोसेस P2 को करने की कोशिश करते हैं. प्रोसेस P2 का एवरेज वेटिंग टाइम जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्नअराउंड टाइम एंड इट्स बर्स्ट ड्यूरेशन. ये तो हमें पता है, लेकिन हम मैनुअल भी करने की कोशिश करते हैं. P2 सिस्टम में आया एट टाइम t इज इक्वल टू 6, और P2 सिस्टम से गया एट टाइम t इज इक्वल टू 21. ठीक है. और जैसे ही ये सिस्टम में आया वैसे ही इसको जो है वो जगह मिल गई सीपीयू के ऊपर. इसका मतलब है इसको वेट ही नहीं करना पड़ा. जब इसको वेट नहीं करना पड़ा तो इसका वेटिंग टाइम हो गया इक्वल टू 0. ओके. अब आते हैं हम लोग P3 के ऊपर. P3 came into the system at time t is equal to 25, and it got the CPU at time t is equal to 45.
यानी 20 टाइम मिनट्स इसने वेट किया रेडी क्यू के अंदर। सिस्टम का प्रोसेस इसको सीपीयू मिलने का वेट करना पड़ा, तो इसको 20 टाइम मिनट्स जो है वो वेट करना पड़ा। वेटिंग टाइम इसका 20 हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं। चेक किस तरह करना है, हमें दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इसका टर्न अराउंड टाइम निकाले, उसमें से बर्स्ट ड्यूरेशन माइनस कर दें। तो बर्स्ट ड्यूरेशन माइनस करती 9, तो वो हमारे पास 20 आ गया। अच्छा, हम थोड़ा सा ये इसको क्रॉस आउट करना भूल गए थे, दो के इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको क्रॉस आउट भी कर देते हैं। P3 का बर्स्ट ड्यूरेशन रिमेनिंग 0 रह गया, हमने आखिर में इसको अपडेट नहीं किया था। अच्छा, P4 पे आते हैं। P4 का जो है वो वेटिंग टाइम कितना है। P4 सिस्टम में आया एट टाइम t इज इक्वल टू 18, और उसको सीपीयू पे जगह मिली एट टाइम t इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 टाइम ड्यूरेशन जो है वो इसने रेडी क्यू में गुजारी है वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। यानी कि इसका जो वेटिंग टाइम है वो 6 हो गया। दूसरे तरीके से अगर इसको हम देखें, क्रॉस चेक करें, तो इसका टर्न अराउंड टाइम था 20, और इसका बर्स्ट ड्यूरेशन था 14। तो टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट ड्यूरेशन को माइनस कर दिया तो बचा 6। और P5 का भी यही काम करते हैं। P5 का भी टर्न अराउंड टाइम इसका था हमारे पास 10, और इसमें से हमने माइनस कर दिया इसका बर्स्ट ड्यूरेशन, तो हमें हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम आया वो था 3, और वो उसका जो था वो वेटिंग टाइम था। यानी कि हमारे पास P5 जो है वो सिस्टम में आया एट टाइम t इज इक्वल टू 35, और उसको 3 टाइम मिनट्स वेट करने के बाद सिस्टम मिला एट टाइम t इज इक्वल टू 38। तो हमारे पास ये आ गया 5, इसका वेटिंग टाइम आ गया। इसको हम जरा सा थोड़ा एवरेज निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हमें पता ही है नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5 है हमारे एग्जांपल्स में। किसी एग्जांपल में 4 होगा तो 4 हो जाएगा, किसी एग्जांपल में 3 होगा तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस 3 हो जाएंगे। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसको हम सारे वेटिंग टाइम्स को ऐड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हमारा जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। 11 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 3, तो ये हमारे पास पूरा वेटिंग टाइम निकल आएगा। तो दिस इज इक्वल टू गोइंग टू बी इक्वल टू 11 प्लस 20 31, 31 प्लस 7 31 प्लस 11 प्लस 20 31 हो गया, और 31 के अंदर आप 6 ऐड कर लें तो 37 हो गया, प्लस 3 40 हो गया। 40 डिवाइड बाय 5 जो है वो 8 आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास वेटिंग टाइम जो हमारे पास आ गया वो आ गया 8 टाइम यूनिट्स। अब ये टाइम यूनिट्स हम मिली सेकेंड कह लें या माइक्रो सेकेंड कह लें या सेकंड्स कह लें, व्हाटएवर, 8 टाइम यूनिट्स हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया है। तो अगर आपको कभी टाइम यूनिट्स लिखने भी पड़े तो उसके अंदर आप टाइम यूनिट्स लिख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। रिस्पॉन्स टाइम इस केस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको नहीं पता कि एट व्हाट टाइम अ सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग टू इट्स पेरेंट। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम हमने बनाया और उसे चलाया, तो पहली बार कौन सा इनपुट कितनी देर के बाद वो प्रोग्राम आउटपुट हमको दे रहा है, हमें पहला रिस्पॉन्स कब दे रहा है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पहला रिस्पॉन्स को कब देगा। इसलिए हम रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट या नॉन या प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर
हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम को देखेंगे और हम अज्यूम करेंगे कि जब भी प्रोसेस को प्रोसेसर के ऊपर टाइम मिलता है वैसे ही वो रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये सब अच्छा चले ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम हम कहते हैं, हमने कहा कि हम एज्यूम कर रहे हैं, इस केस में भी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे ही सिस्टम पे मिलती है जगह एक प्रोसेस को, वो वैसे ही जो है वो रिस्पॉन्ड कर देता है। तो अभी अगर हम इनके केस में इंडिविजुअली देखें तो P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है? P1 सिस्टम पे अराइवल टाइम इसका टाइम t इक्वल टू 10 था, और उसको रिस्पॉन्स जो जैसे ही पहला उसने रिस्पॉन्स किया वो टाइम t इक्वल टू 21 पे सिस्टम में आया, ठीक है। और जैसे ही सिस्टम में आया, जाहिर है एक टाइम यूनिट तो उसने लिया होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। जाहिर है पहला टाइम यूनिट तो हम कहेंगे ना कि फर्स्ट टाइम यूनिट जो इसका है वो रिस्पॉन्स करने में उसने गुजारा है। तो हमने इसका रिस्पॉन्स टाइम आ गया 10 से शुरू किया हमने 21 तक, 11 ये हो गया, और एक टाइम यूनिट वो जिसके अंदर उसने रिस्पॉन्ड किया है, तो यानी P1 का रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से P2 का ले लेते हैं हम लोग। P2 का रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास P2 सिस्टम में आया टाइम t इक्वल टू 6, और उसको सिस्टम पे टाइम मिला एट टाइम t इक्वल टू 6, तो एक ही टाइम यूनिट के अंदर उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो इसका टाइम रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली P3 का हम देखें तो P3 सिस्टम में आया था एट टाइम t इक्वल टू 25, और उसको सिस्टम पे टाइम मिला है टाइम t इक्वल टू 45, यानी 20 टाइम यूनिट्स इसने इंतजार में गुजारे, और एक टाइम यूनिट जैसे ही उसको मिला उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो इसको हम कहते हैं P3 का रिस्पॉन्स टाइम 21 था। P3 का रिस्पॉन्स टाइम 21 आ गया। अच्छा, इस केस में हमें सब साफ समझ में आ रहा है कि रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस 1, क्योंकि जितना टाइम उसने वेटिंग क्यू में गुजारा उसके बाद जैसे ही प्रोसेसर मिला उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो रिस्पॉन्स टाइम इज वेटिंग टाइम प्लस 1। तो P4 का रिस्पॉन्स टाइम भी हम लिख लेते हैं। P4 का रिस्पॉन्स टाइम इस केस में हमारे पास आ रहा है 6 + 1 7, और P5 का रिस्पॉन्स टाइम भी हमारे पास इस केस में आ रहा है 3 + 1 4, ठीक है। 3 टाइम यूनिट्स इसने गुजारे यहाँ पे वेटिंग में, और जैसे ही प्रोसेसर पे आया वैसे ही इसने जो है वो रिस्पॉन्ड कर दिया। तो अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें आसान है करना। हम इसको सिंपल सा काम करेंगे कि हम इनको सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, जो हमने पहले भी किया। टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ऐड ऑल द रिस्पॉन्स टाइम्स, सो दिस इज इक्वल टू 12 + 1 + 21 + 7 एंड +4। इसको हम ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 45 टाइम यूनिट्स, 9 टाइम यूनिट्स। दिस इज गोइंग टू बी 45 डिवाइडेड बाय 5, 4 + 7 11 + 21 32, 33 + 12 45, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 9। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी जाहिर बात है वेटिंग टाइम +1 हमारे पास आ गया। जिस तरह हमारे पास सारे रिस्पॉन्स टाइम जो है वेटिंग टाइम +1 थे, उसी तरीके से एवरेज भी हमारे पास वेटिंग टाइम +1, यहाँ पे हमारे पास एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आ गया। और इसको हम यहाँ पे यूनिट्स भी लिख लेते हैं, टाइम यूनिट्स कह देते हैं इसको, टाइम यूनिट्स। हमने मिली सेकंड तो कहा नहीं है, तो टाइम यूनिट्स में आ गया हमारे पास।